हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली क्योंकि आज हमारे दो वैष्णवाचार्यस का एक का आविर्भाव और एक का तिरुभाव है, सो इसलिए मैंने उस पर ही प्रिपेयर किया है। सो मोस्टली वी विल नॉट टेक भागवतम श्लोका, वी विल डिस्कस ऑन द आचार्यस। सो इफ पॉसिबल आप वो सीसी आदि लीला 11.51 डिस्प्ले कर सकते हैं। वेदाभ्यास में जाके चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11.51। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। So my श्लोक, please try to recite along with me. So this is regarding श्री रामचंद्र कविराज, इनके बारे में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जिनका आज डिसअपीयरेंस है। कंसारी सेन रामसेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज, कंसारी सेन रामसेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज, कंसारी सेन रामसेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज। कंसारी सेन रामसेन रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग मुकुंद तीन कविराज, कंसारी सेन रामसेन रामचंद्र कविराज। Anyone? Sari सो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। द फिफ्थ ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रीमान ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Translation: The 58th great devotee of Lord Nityananda Prabhu was Kamsari Sen. The 59th was Ramasen. The 60th was Ramachandra Kaviraj. And 61st, 62nd and 63rd were Govinda, Sriranga and Mukunda, who were all physicians.
Purport. Sri Ramachandra Kaviraj, the son of Khandavasi, Chiranjeev and Sunanda, was a disciple of Srinivas Acharya and the most intimate friend of Narottam Das Thakur, who prayed several times for his association. His youngest brother was Govinda Kaviraj. Srila Jiva Goswami very much appreciated Sri Ramachandra Kaviraj's great devotion to Lord Krishna and therefore gave him the title Kaviraj. Sri Ramachandra Kaviraj, who was perpetually disinterested in family life, greatly assisted in the preaching work of Srinivas Acharya and Narottam Das Thakur. He resided in Srikhanda but later in the village of Kumar Nagar on the bank of Ganges. Govinda Kaviraj was the brother of Ramchandra Kaviraj and the youngest son of Chiranjeev of Srikhanda. Although at first a Shakta or worshipper of goddess Durga, he was later initiated by Srinivas Acharya Prabhu. Govinda Kaviraj also resided first in Srikhanda and then in Kumar Nagar. But later he moved to the village known as Telia Budhari on the southern bank of the river Padma. Since Govinda Kaviraj, the author of two books, Sangeet Madhav and Gitamrit, was a great Vaishnava Kavi or poet, Srila Jiva Goswami gave him the title Kaviraj. He is described in the Bhakti Ratnagar. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminti Namine Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namine Shivarshavanavi Devi Daitaya Kripabde Krishna Sambandha Vijnanadayane Prabhave Namaha Madhuryajjala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gaurvane Shri Murte Dinatarane Rupanuga Viruddha Pasiddhanta Dvanta Harane Namo Gauri Kishoraya Sakshad Vairagya Murte Vipralambara Sambodhe Padambujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaur Shakti Swarupaya Rupanugavarayate Gauravirbhava Bhumistam Nirdishta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Jaitam Surtopangor Mam Vandamatergati Mat Sarvasva Padam Bhojo Radha Madana Mohanu Divyad Vrindaranya Kalpadrumada Srimad Ratnagara Simhasanastho Srimad Radha Shila Govinda Devo Prishtadvi Sevi Manu Smarami Shriman Rasarasaram Bhivam Shivata Tatasthita Karshan Venu Suner Gopir Gopinath Shri Astuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Kamsari Sena Ramasena Ramachandra Kaviraja Govinda Shri Ranga Mukunda Tina Kaviraja. सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने काफ़ी डिटेल्स दे दिया है श्रील रामचंद्र कविराज के बारे में। तो इनके माता और पिता का नाम चिरंजीव सेन और सुनंदा प्रभुपाद जी बता रहे हैं।
है ना। और चिरंजीव सेन मिनिस्टर थे गौड़ देश में। गौड़ देश हैज़ वी नो दैट टाइम का बंगाल, उसको गौड़ देश बोलते। तो वहाँ पर जो गौड़ वहाँ के राजा के अंडर में चिरंजीव सेन एक मिनिस्टर थे। और तो इनके दो पुत्र थे, रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज। दिस टू बोथ आर ब्रदर्स। सो कविराज माने फिजिशियन भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे हम सबको याद होगा प्रभुपाद लीला में भी, जब प्रभुपाद जी बहुत लास्ट में बीमार पड़ जाते और वृंदावन में शिफ्ट हो जाते, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए भी जो डॉक्टर बुलाते थे उसको कविराज करके वो आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाते थे। तो कविराज ये टाइटल डॉक्टर्स को दिया जाता था उस समय। बट यहाँ पर जो टाइटल इनको दिया है, ये श्रील जीव गोस्वामी ने इनको टाइटल दिया है कविराज। क्यों? क्योंकि जीव गोस्वामी ने देखा कि इनका भगवान कृष्ण के प्रति कितना भक्ति है, तो उनकी भक्ति को देखते हुए ये टाइटल कविराज दिया गया। वैसे ही जीव गोस्वामी ने ही इनके भाई गोविंद को भी कविराज टाइटल दिया, क्योंकि बहुत सुंदर वो वैष्णव पोएम्स कंपोज करते थे, पोएट थे वो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि रामचंद्र कविराज वॉज परपेचुअली डिसइंटरेस्टेड इन फैमिली लाइफ। तो हालांकि इनका विवाह हुआ था, ओके, ही वॉज मैरिड, बट फैमिली लाइफ में इनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल है। सो अगर हम वो थोड़ा याद करें हिस्ट्री को, तो वी नो वी हैव जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के 3 फेमस डिसाइपल्स हैं, राइट? कौन कौन? जीव शिक्षा डिसाइपल्स, नॉट दीक्षा बट शिक्षा डिसाइपल्स। जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य एंड श्यामानंद पंडित। ये तीनों को ही भेजते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इन तीनों को ही जीव गोस्वामी प्रीचिंग मिशन पे भेजते हैं, जाओ बंगाल में गोस्वामी ग्रंथों का जो हमने अभी लिखा है उनका प्रचार करो। तो उसमें श्रीनिवास आचार्य एक है, और इन श्रीनिवास आचार्य के डिसाइपल है रामचंद्र कविराज। एंड so I made some more notes also. अपने फादर जो है चिरंजीव सेन, इनके डेथ के बाद रामचंद्र अपने नाना, मैटरनल ग्रैंडफादर, इनके घर रहने जाते हैं। उनके नाना का नाम दामोदर कविराज। सो बेसिकली दे वर कमिंग इन अ फैमिली ऑफ फिजिशियंस। और दामोदर कविराज जो कि इनके नाना है, मैटरनल ग्रैंडफादर, बताएगा कि वो नरहरि सरकार, एक और हमारे फेमस वैष्णव आचार्य, इनके डिसाइपल थे। एंड सो कविराज टाइटल उनको कैसे मिलता है? तो क्योंकि श्रीनिवास आचार्य के ये डिसाइपल है, इनका दीक्षा हुआ है श्रीनिवास आचार्य से। और हमको याद है कि श्रीनिवास आचार्य ने, जब ये 3 जा रहे होते हैं, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामानंद पंडित, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ जीव गोस्वामी टू बंगाल प्रीचिंग। तो बंगाल के पास आई थिंक ओडिशा है वो स्थान, इट्स क्लोज टू ओडिशा, उस पास में आते हैं। तो वहाँ का एक राजा रहता है, वो डकैत रहता है, बीर हम्बीर नाम रहता है उसका। तो उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर रहता है, या ऐसे ये रहता है, ज्योतिष या प्रेडिक्शन करने वाला व्यक्ति रहता है उसके कोर्ट में, जो उसको बोलता है कि अरे यहाँ से 3 लोग एक बुलक कार्ट लेके जा रहे हैं। बुलक कार्ट में वो सारे एक्चुअली गोस्वामी इसके बुक्स डाल के लेके जा रहे होते हैं प्रचार के लिए। तो वो उसका एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है, उसका कोर्ट का बीर हम्बीर को, कि 3 लोग आएंगे, बहुत कीमती, मूल्यवान, अमूल्यवान धन लेके आ रहे हैं। तो दैट्स ट्रू, गोस्वामी लिटरेचर, दे आर स्पिरिचुअल बुक्स, अमूल्यवान धन है, इट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, इट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर एक्चुअली। सो ये बीर हम्बीर तो बाय डिफॉल्ट लुटेरा था ही, बट सो इसने लूट लिया था रात में, उनके बुलक कार्ट को लूट के अपने अंदर ले लिया। सो
तीनों आचार्य बहुत परेशान होते हैं। तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि आप दोनों जाइए, मैं कुछ तो करके ढूंढता हूँ। सो श्रीनिवास आचार्य, बिकॉज ही वॉज अ वेरी एक्सपर्ट रिसाइटर ऑफ भागवतम, तो वो उस गांव में भागवतम का रिसाइटेशन करते रहते हैं और उनके रिसाइटेशन से बहुत प्रचार होता है उस गांव में, सब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड ये बीरमबीर जो राजा है उसके पास खबर पहुंचती है, वो इनको बुलाता है अपने कोर्ट में भागवतम सुनाने के लिए। एंड उनके भागवतम सुन के वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लेता है। और फिर वो सब तो बोलता है, गुरु जी हम क्या सेवा कर सकता हो? तो गुरु श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं, हमारा ऐसा ऐसा बुक्स खो गया है, बुलक कार्ट में लेके जा रहे थे। तो पूरा स्टोरी सुनाता है और बुक्स दे देता है। सो दिस बीरमबीर वॉज दीक्षा डिसाइपल ऑफ श्रीनिवास आचार्य, बट इसका पूरा शिक्षा गुरु कौन थे? रामचंद्र कविराज थे। और फिर रामचंद्र कविराज ये भी वृंदावन में जाते हैं और सारे गोस्वामी इसका आशीर्वाद लेते हैं और इनकी पोइट्री से प्रसन्न होकर जीव गोस्वामी इनको कविराज का टाइटल देते हैं। सो ऐसे बोला था कि वो टोटल 8 लोगों को कविराज का टाइटल दिया था उन्होंने। आई थिंक अभी सबके नाम मुझे पता नहीं है, बट देन ही वॉज अमॉन्ग दोज फेमस 8 कविराज, रामचंद्र कविराज। एंड अगेन इफ यू सी रामचंद्र कविराज, इनके स्पिरिचुअल मास्टर कौन? श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये 3 लोग। ठीक है, अभी श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये दोनों दे आर शिक्षा डिसाइपल्स ऑफ जीव गोस्वामी। So Srinivas Acharya and Narottam Das Thakur, they are like equals and very good friends. And Srinivas Acharya के disciple है रामचंद्र कविराज, है ना? तो रामचंद्र कविराज is one sense junior to Narottam Das Thakur also, है ना? But हम जो famous ये गाते हैं, जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। सो मायापुर में हम जो फेमस भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, उसका लास्ट लाइन क्या है? रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। सो नरोत्तम दास ठाकुर, हालांकि रामचंद्र कविराज इज जूनियर टू हिम बिकॉज ही इज द डिसाइपल ऑफ श्रीनिवास आचार्य, बट नरोत्तम दास ठाकुर का इनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप था। इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप है कि इतना फेमस है कि वो बुक वो अपने भजन में लिख देते कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास की। रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर, आई ऑलवेज डिजायर फॉर द एसोसिएशन ऑफ रामचंद्र कविराज। सो दैट्स वाई इनका इस प्रकार से बहुत फेमस है, नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज का भी फ्रेंडशिप। एंड देन इन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं रामचंद्र कविराज। जितने भी हमारे आचार्य हुए उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसी प्रकार से रहा है कि इन्होंने हमारे गौड़ीय सिद्धांत पे बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। तो रामचंद्र कविराज ने भी जो बुक्स लिखे हैं उनमें से कुछ नाम है स्मरण चमत्कार, स्मरण दर्पण, सिद्धांत चंद्रिका। और इन्होंने श्रीनिवास आचार्य का बायोग्राफी भी लिखा है रामचंद्र कविराज ने। सो स्मरण चमत्कार, समर्पण, स्मरण दर्पण एंड सिद्धांत चंद्रिका। एंड देन ऐसा कहा जाता है कि इनका जो ब्रजलीला में जो रूप है सिद्ध, व्हाट वी कॉल दैट इज कर्ण मंजरी, कर्ण मंजरी। सो ये भी मंजरी है रामचंद्र कविराज। और श्रीनिवास आचार्य के पास में ही जो श्रीनिवास आचार्य की समाधि है उनके पास में ही इनकी भी समाधि है। अभी एग्जैक्ट लोकेशन ये कहाँ है पता नहीं, बट धीर समीर कुंज, वहाँ उस जगह का नाम है धीर समीर कुंज, जहाँ पर श्रीनिवास आचार्य की समाधि है और उसके पास में ही इनकी भी समाधि है। एग्जैक्टली वेयर इज दिस धीर समीर कुंज मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया, गूगल करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट वाज वंडरफुल आचार्य रामचंद्र कविराज, जिनके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं। एंड दैट इज़ वाई वो बहुत फेमस लाइन है। व्हेनेवर इनका नाम आता है तो हमको यही याद आता है,
नरोत्तम दास ठाकुर और इनका फ्रेंडशिप और भजन रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास। एंड इनकी जो भक्ति से प्रसन्न होकर कैसे जीव गोस्वामी इनको कविराज का टाइटल देते हैं। Then today is also the appearance of Srila Gopal Bhatta Goswami, who is one of the most celebrated 6 acharyas of Vrindavan. वृंदावन में कहीं भी जाओ 6 गोस्वामी को हर कोई जानता है। आप कहीं भी जाइए, हर कोई वृंदावन के, हर कोई किसी भी चाहे परंपरा का हो, कोई दूसरी वैष्णव परंपरा का कभी भक्ति क्यों ना हो, 6 गोस्वामी इसको हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर कोई बहुत रिस्पेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आज जो वृंदावन है वो है। चैतन्य महाप्रभु का जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है गोस्वामी इसको ही था, राइट, कि जाओ वृंदावन में प्लेसेस जो भगवान कृष्ण की लीला की स्थली है उनका आप रिस्टोर करो, रिस्टोरेशन करो, बुक्स लिखो वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पे, स्पेशली मंदिर खड़े करो और विग्रह प्रतिष्ठा करके पूजा उनका विग्रह सेवा स्टार्ट करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था गोस्वामी को, और फिर गोस्वामी ने वो पार किया। एंड गोस्वामी की वजह से हम जो आज वृंदावन देखते हैं वो सब है, क्योंकि बहुत सारे भगवान कृष्ण के जाने के बाद तो वृंदावन की लीला स्थलियाँ सब लुप्त हो गई थी। सो गोस्वामी इसका जितना कंट्रीब्यूशन है आज के वृंदावन, उतना और किसी का हम नहीं कंपेयर नहीं कर सकते बेसिकली। एंड वन ऑफ दोज गोस्वामी वाज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगेन वेरी सेलिब्रेट, बहुत तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके पिताजी जो है वो एक श्री वैष्णव थे, इनका नाम वेंकट भट्ट, वेंकट भट्ट। एंड ये कहाँ के रहने वाले थे? यस, श्रीरंगम। वेंकट भट्ट वॉज अ रेसिडेंट ऑफ श्रीरंगम, तमिलनाडु। सो दे वर श्री वैष्णवास एंड दे यूज्ड टू वर्शिप लक्ष्मी नारायण। ओके, श्री वैष्णवास थे। एंड इनका जब बचपन में गोपाल भट्ट गोस्वामी जब छोटे थे तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चातुर्मास, मतलब जो बारिश के 4 महीने होते हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु जब अपना साउथ इंडिया का टूर कर रहे होते हैं ना, तो चातुर्मास के टाइम पे यहाँ पर आते हैं और वेंकट भट्ट के घर में रुकते हैं, पूरे 4 महीने रुकते हैं चैतन्य महाप्रभु। जस्ट इमेजिन क्या मतलब डिवोशन रहता होगा इन सब का, कि चैतन्य महाप्रभु वेटेड फॉर 4 months इन द हाउस ऑफ वेंकट भट्ट। एंड इनका और वेंकट चैतन्य महाप्रभु और वेंकट भट्ट का बहुत क्लोज फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया था। तो एंड कृष्णदास कविराज बोलते कि दोनों देवर इन साख्य रस, तो हंसी मजाक वगैरह भी करते थे एक दूसरे के साथ। तो इसी प्रकार से एक बार क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही जोक में बोलते हैं वेंकट भट्ट को कि ये लक्ष्मी नारायण के वर्शिपर थे। तो बोलते अरे तुम लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हो, तुम्हारी लक्ष्मी जी तो वैकुंठ का आना, वैकुंठ छोड़ के और नारायण की भी सेवा छोड़ के हमारे वृंदावन में तपस्या कर रही है ताकि उनको हमारे कृष्ण का दर्शन हो सके। तो छोड़ दो ना, तुम भी क्यों वर्शिप कर रहे हो लक्ष्मी नारायण का, क्या ज़रूरत है? हाँ, सो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ऐसे हंसी मजाक में ही ट्राइज टू पुश वेंकट भट्ट कि यू लीव द वर्शिप ऑफ लक्ष्मी नारायण, यू ऑल्सो स्टार्ट वर्शिपिंग कृष्णा, क्योंकि तुम्हारी लक्ष्मी जी ही कृष्ण के पीछे सेवा में लगी हुई है, कृष्ण के लिए तपस्या कर रही है, कृष्ण को पाने के लिए। सो उनको ही पूछते हैं तो तुम क्या विचार कर रहे हो तुम? तो वेंकट भट्ट इज कंफ्यूज, बट ये कि देखो आप भगवान हो, आप भी जानते हो लक्ष्मी जी ऐसा क्यों कर रही है, आप ही बताइए। सो इफ वी कैन ओपन CC मध्य लीला 9.144। सो चैतन्य महाप्रभु ही बताते हैं कि वाई लक्ष्मी जी लीव्स वृंदावन एंड कम्स टू गोकुल। गोकुल में कहाँ आती है? ऐसा गोकुल बेसिकली, हाँ, गोकुल महावन, शी इज डूइंग तपस्या देयर। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.124।
सॉरी 9.144 CC मध्य 9.144. एनीवेज, तो बेसिकली इसके 9.144 मध्य लीला, चैप्टर 9 मध्य लीला 144 श्लोक का नंबर. So we know what are the 5 primary rasas. क्या है 5 रस, क्या है बताइए प्राइमरी वाले. अरे स्टार्टिंग से बताओ. सब लोग अभी भक्ति शास्त्री करने वाले हो ना. I should know this. लाइन में बताने का. प्रभु जी ने जैसे बताया, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य. सो भगवान कृष्ण अपना माधुर्य रस डिस्प्ले करते हैं वृंदावन में, राइट. व्हाट इज माधुर्य रस? व्हाट इज माधुर्य रस? प्रथमेश प्रभु, व्हाट इज माधुर्य रस? विथ कॉन्जुगल लविंग अफेयर्स विथ गोपीज, है ना. सो चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज दिस. नारायण है ते कृष्णेर असाधारण गुण, अतएव लक्ष्मीर कृष्णे तृष्णा अनुक्षण. पढ़िए ट्रांसलेशन. दुर्गेश प्रभु पढ़ो ट्रांसलेशन. ओके, परपट में प्रोपार लिख रहे हैं. परपट है ट्रांसलेशन यहाँ पर. लॉर्ड नारायण हैज 60 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज. ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जितने भी लिविंग एंटिटीज है ना, सब में कुछ ना कुछ गुण होते हैं. हम जीव में भी कुछ है, ब्रह्मा जी में भी कुछ है. एग्जैक्ट नंबर पता नहीं मुझे, बट देयर आर. शिव जी में भी सम 50 या 50+ है. 57. ओके, ब्रह्मा जी में 50 है, फिर शायद 54. ब्रह्मा जी 54, शिव जी 57. लॉर्ड नारायण 60, बट कृष्णा 64. सो ऑल 64 किस में? सिर्फ कृष्णा में. तो प्रभुपाद वो बता रहे कि लॉर्ड नारायण ने 60 ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज. ओवर एंड अबाउट दिस कृष्णा हैज 4 एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एब्सेंट इन लॉर्ड नारायण. So these 4 qualities are his wonderful pastimes, which are compared to ocean. Wonderful pastimes, Leela Madhuri. Okay, Leela Madhuri. Then his association in the circle of supreme devotees in conjugal love, the gopis. तो माधुर्य रस डिस्प्ले करते हैं भगवान. नारायण ये सब नहीं करते. Then his playing on the flute, whose vibration attracts the 3 words, flute, Venu Madhuri. And his extraordinary beauty, Roop Madhuri. His extraordinary beauty which surpasses the beauty of the 3 worlds. Lord Krishna's beauty is unequaled and unsurpassed. तो क्योंकि ये 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है कृष्णा में जो नारायण में भी नहीं है. लक्ष्मी जी अट्रैक्ट हो जाती है. लक्ष्मी जी क्या, हर कोई कृष्णा के प्रति इन सब के वजह से अट्रैक्ट हो रहा है. सो टू गेट द एसोसिएशन ऑफ कृष्णा इन दैट वे, लक्ष्मी जी जो है, चैतन्य महाप्रभु इनको समझा दे वेंकट भट्ट कि वो वैकुंठ को भी छोड़ के वृंदावन में आके तपस्या करिए. सो लाइक दैट चैतन्य महाप्रभु एंड वेंकट भट्ट दे वुड जोक विद ईच अदर. एंड चैतन्य महाप्रभु ने इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत एसोसिएशन दिया. सो देयर इज वेंकट भट्ट एंड जब चैतन्य महाप्रभु आए थे इनके घर पर, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बच्चे ही थे और इनको चांस मिला था चैतन्य महाप्रभु को पर्सनली सर्व करने के लिए. सो ही वाज सर्विंग चैतन्य महाप्रभु स्मॉल गोपाल पर्सनली. एंड चैतन्य महाप्रभु इनको उतना उच्छिष्ट देते थे झूठा खाने के लिए. एंड मिल गया, ब्लेसिंग मिल गया टू बिकम एन आचार्य. सो देन चैतन्य महाप्रभु ब्लेस्ड हिम, यू नो, बिकम एन आचार्य. अच्छा, अभी सो ही वॉज, जब जाने का टाइम आया महाप्रभु का, तो ही वॉज वेरी, यू नो, गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत उतावले हो गए थे. वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करना चाहते थे एक तरह से, बट महाप्रभु ने बोला कि नहीं, तुम इधर ही रुको. ओके. और उनको बोला कि घर पर ही रुको, माता पिता की सेवा करो, बट डोंट गेट मैरिड.
सर्व योर पेरेंट्स और उनके परमिशन के बाद ही तुम वृंदावन में आना, उनके परमिशन लेके वृंदावन में आओ, ठीक है। सो दैट्स व्हाट चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी इनको बोल के रखा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी को। सो देन इनके अंकल भी है, मतलब वेंकट भट्ट के भाई, जिनका नाम है, एनी गेसेस? वेंकट भट्ट के भाई बहुत फेमस आचार्य है हमारे परंपरा में, और प्रबोधानंद सरस्वती नाम सुना है ना? ही इज वन ऑफ द आचार्यज इन आवर गौड़ीय वैष्णव परंपरा। ओके, सो प्रबोधानंद सरस्वती भी श्रीरंगम के ही है, यहाँ की वेंकट भट्ट के भाई है, और ही वॉज एक्चुअली अ श्री वैष्णव, ही वॉज ऑल्सो श्री वैष्णव। बट क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर आते हैं एंड साउथ इंडिया में पूरा घूम फिर के सारे साउथ इंडिया श्री वैष्णवास को प्रचार करके राधा कृष्णा के डिवोटीज बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही हैड सो मच इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट एक्चुअली। सो चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से एक्चुअली वेंकट भट्ट और उनका पूरा परिवार इंक्लूडिंग प्रबोधानंद सरस्वती एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी, तभी तो छोटे बच्चे हैं गोपाल, ये सब राधा कृष्ण का पूजा या वर्शिप भक्त बन जाते हैं। पूजा तो नहीं होता है, राधा कृष्ण की सेवा करना चालू करते हैं। एंड फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है प्रबोधानंद सरस्वती इनसे दीक्षा लेते हैं। सो ही इज द दीक्षा डिसाइपल, गोपाल भट्ट गोस्वामी ही इज दीक्षा डिसाइपल ऑफ प्रबोधानंद सरस्वती, हु इज नन अदर देन हिज अंकल, पिताजी के भाई है प्रबोधानंद सरस्वती। एंड मैंने एक स्थान पर सुना था हमारे, आई थिंक दीनबंधु बाबा से ही मैंने सुना था कि प्रबोधानंद सरस्वती इज अ कट्टर चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर, मतलब कृष्णा को भी नहीं मानेंगे, चैतन्य महाप्रभु को उतना मानेंगे, लाइक दैट, कट्टर चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है प्रबोधानंद सरस्वती। सो दैट इज हिज सो सो इसका प्रूफ हरि भक्ति विलास में मेंशन्ड है कि हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, एंड एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी हेल्प करते हैं सनातन गोस्वामी को इस बुक के कंपाइलेशन में। सो हरि भक्ति विलास में मेंशन्ड है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के दीक्षा गुरु प्रबोधानंद सरस्वती। सो देन नेचुरली क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके माता पिता भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत स्टॉन्च डिवोटीज थे, तो उन्होंने लास्ट क्लास में गोपाल को बोल दिया, मतलब अब जस्ट जब वो लोग शरीर छोड़ने वाले उसके पहले वृद्ध हो गए, तभी उन्होंने गोपाल भट्ट को बोल दिया कि यू गो टू वृंदावन। सो देन गोपाल भट्ट गोस्वामी कम्स टू वृंदावन, और वहाँ पर बाकी जो गोस्वामी प्रेजेंट थे उनसे मिलते हैं, एंड नेचुरली ऑल आर वेरी हैप्पी कि गोपाल भट्ट गोस्वामी हैज़ कम। एंड रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मैसेज भेजते चैतन्य महाप्रभु को कि गोपाल भट्ट हैज़ कम, एंड चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो बिकम्स वेरी हैप्पी टू हियर दिस, एंड महाप्रभु स्पेशली अपना कॉपमिन भेजते हैं एज अ गिफ्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। सो देन ही इज हेल्पिंग while staying here, he is helping the other Goswamis in their literature, and वो खुद भी लिटरेचर लिखते हैं। इनका मेनली भजन होता था ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड, गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा कुंड के तट पे रह के ये भी भजन करते थे अपना। एंड देन फ्रॉम वृंदावन ये पर्यटन पे भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा के पिलग्रिमेज पे नेपाल में जाते हैं। एंड नेपाल में देर इज़ वन रिवर विच फ्लोस गंडकी, जो किसके लिए फेमस है? यस, शालिग्राम शिला। तो उसमें ये जाते हैं नदी में, एंड मे बी फॉर एग्जैक्टली मुझे अभी क्लियरली याद नहीं आ रहा, बट आइदर फॉर आचमन या कुछ पानी पीने के लिए जब वो पानी अपने हाथ में लेते हैं ना, तो बहुत सारे शालिग्राम अपने आप उनके हाथ में आ जाते हैं। ये डालते हैं वापस, अरे मुझे तो शालिग्राम नहीं चाहिए करके, वापस जब हाथ में पानी लेते हैं तो देखते हैं अरे वापस शालिग्राम हाथ में आ गए। दूसरी बार भी ऐसे होता है, वापस डाल लेते हैं। तीसरी बार जब करते देखते हैं कि वापस हाथ में शालिग्राम आ रहे हैं, देन ही कंसिडर्स कि
ठीक है अभी तीसरी बार हुआ है, मतलब भगवान की इच्छा है, तो सारे शीलास को पोटली में बांध के अपने साथ लेके आ जाते हैं वृंदावन में एंड उनका सेवा वगैरह करते हैं उधर। उसमें से देयर इज़ वन वेरी स्पेशल शीला जिसका नाम रहता है दामोदर शीला। इसका क्या स्टोरी है बताता हूँ। बाय दैट टाइम ऑलरेडी बाकी भी जितने भी गोस्वामी थे, स्पेशली रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये सब अपने अपने विग्रह की सेवा कर रहे थे। जैसे सनातन गोस्वामी के कौन से विग्रह, जोर से बोलिए, राधा मदन मोहन जी, राइट। रूप गोस्वामी के कौन से है, राधा गोविंद जी। सो ऑल गोस्वामीज हैड देयर ओन डीटीज एंड दे वर सर्विंग वेरी नाइसली। एंड फिर ऐसा होता है कि एक दिन एक बहुत धनी मर्चेंट आता है, मर्चेंट मर्चेंट नॉट किंग, मर्चेंट आता है। सो एंड गोपाल भट्ट गोस्वामी भी देखते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ये सारे आचार्य डीटी वर्शिप कर रहे हैं बाकी के। एंड ये मर्चेंट क्या करता है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन सब के डीटीज़ के लिए बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स क्लोथिंग वगैरह दे के जाता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी देते हैं। बट देन गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत दुख होता है कि यार मेरे पास तो डीटी नहीं है, शालिग्राम को मैं क्या ऑर्नामेंट्स पहनाऊँगा, ज्वेलरी पहनाऊँगा, क्लोथ्स पहनाऊँगा, तो सब छोटे छोटे रूप में है। एंड दैट इज़ द डे ऑफ नरसिम्हा चतुर्दशी। ये जो दिन रहता है नरसिम्हा चतुर्दशी रहता है। सो वो बहुत गहरे भाव के साथ नरसिम्हा देव से प्रार्थना करते हैं कि देखिए अभी ये सब मुझे मिला है लेकिन मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे आपका कुछ सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो ऐसा करते करते ही इज़ प्रेइंग कॉन्स्टेंटली। एंड देन अगले दिन जब वो देखते हैं अब अपना सब डेली रूटीन करके, जब वो आते हैं अपना शीला का पूजा करने के लिए, देखते हैं कुछ तो बड़ा सा ऐसे फील होता है उनको, लग रहा है सम फीलिंग आता है कि अरे कुछ तो बड़ा सा ऐसे लग रहा है, नॉर्मल जो उनके शालिग्राम पत्थर रहते हैं उससे कुछ अलग लग रहा है। एंड खोल के देखते तो जो दामोदर शिला रहता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, श्री श्री राधा रमन, श्री श्री राधा रमन की जय। सो इस प्रकार से भगवान खुद उनको रेसिप्रोकेट करते हुए शालिग्राम जो है वो राधा रमन डीटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो दैट दिस डीटी इज़ वेरी फेमस, सेल्फ मैनिफेस्टेड। एंड इसका स्पेशलिटी ऐसे बताया जाता है कि एग्जैक्टली कृष्णा को रिजेंबल करते हैं। जो वज्रनाभ जी कृष्णा के पोते हैं, जब उनको भगवान का विग्रह कार्व करना था तो उस समय एक ही व्यक्ति था जिसने कृष्ण को देखा था उस टाइम पे, जो थी उत्तरा महारानी, मदर ऑफ परीक्षित महाराज। तो वो डिस्क्रिप्शंस देती थी वज्रनाभ जी को और वज्रनाभ जी कार्विंग करवाते थे। तो पहले डीटी कार्व कराया, उसको उत्तरा देवी ने देख के बोला कि नहीं इनका पूरा शरीर तो नहीं लेकिन चरण मिलते हैं भगवान कृष्ण से। तो वो कौन है, मदन मोहन जी। फिर दूसरा डीटी वापस कार्व किया, तो बोला कि नहीं इनका जो मध्य भाग है वक्षस्थल और ये मिलता जुलता है कृष्ण से, बाकी कुछ नहीं मिलता है, तो ये गोविंद देव जी। एंड जब थर्ड डीटी कार्व किया तो उनका दर्शन किया तो ऐसे एक जगह मैंने सुना कि उत्तरा जी ने पूरा अपना घूंघट ढक लिया क्योंकि फेस एकदम मिल रहा था कृष्ण से। सो दैट वाज द ट्रेडिशन ना, ऐसे सामने से देखते नहीं थे। तो दैट इज़ गोपीनाथ जी। सो द थिंग इज़ कि इन तीनों का डीटीज़ का पूरा शरीर तो नहीं बट कुछ कुछ हिस्सा मिलता था एग्जैक्टली भगवान कृष्ण से। बट फॉर राधा रमन ऐसा बोला है कि राधा रमन फ्रॉम लोटस फीट टू लोटस फेस रिजेंबल्स एग्जैक्टली लॉर्ड कृष्णा। तो इसलिए ऐसे ही बोलते हैं कि तीनों डीटीज़ का दर्शन एक साथ हो जाता है जब राधा रमन जी का दर्शन हो जाता है। एंड उनको प्रकट करने वाले हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। एंड वी नो दैट टेम्पल इज स्टिल इन वृंदावन एंड वेरी फेमस। सो जब मालूम पड़ा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करने आए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। एंड बहुत सो इस दिन ऑन दिस नेक्स्ट डे ऑफ नरसिम्हा चतुर्दशी राधा रमन जी का ब्रह्मोत्सव जैसा होता है। सो उस दिन उनका अभिषेक वगैरह होता है, बहुत सुंदर रहता है देखने के लिए। बहुत वृंदावन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। सो
गोइंग अहेड, ऑल्दो राधा रमन डीटी प्रकट हुए और इतना उनका नाम प्रचलित हो गया था गोपाल भट्ट गोस्वामी, बट एज वी नो द गोस्वामीज दे वर वेरी मीक एंड हम्बल, विनम्र थे। भूतवा दीन गणेश को करुण्या कौपी न कंथा शुतु, सब आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड से आ रहे थे, जैसे रूप एंड सनातन गोस्वामी देवर बिग बिग मिनिस्टर्स, बोर्ड भर के गोल्ड कॉइन्स था उनके पास, राइट, ऐसा बोला गया है, किसी भी सिटी को खरीद सकते थे आराम से, इतने बड़े मिनिस्टर्स थे। सिमिलरली रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े ज़मींदार के बेटे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी अगेन फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस श्री वैष्णव फैमिली, ये सब बहुत, इनका बैकग्राउंड देखे तो बहुत ऑपुलेंट था गोस्वामी का, बट ये सब छोड़ छाड़ के एकदम विनम्रता से वृंदावन में रह रहे और चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे। सो सिमिलरली गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बहुत विनम्र थे, इतने विनम्र थे कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनसे चैतन्य चरितामृत के लिए आशीर्वाद मांगने आए ना, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम मत लेना चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु कविराज गोस्वामी को गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्पेशली बोला कि डोंट राइट मेंशन माय नेम इन चैतन्य चरितामृत। ही वाज सो मीक एंड हम्बल एक्चुअली, कि वो नहीं चाहते थे कि इस बुक में मेरा नाम हो, तो इसलिए कविराज गोस्वामी ने बस एक जगह पर इंट्रोड्यूस करने के लिए उनका नाम मेंशन किया है, अदरवाइज कुछ मेंशन नहीं किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, क्योंकि अभी उनकी आज्ञा के विरोध तो जान ही सकते हैं। तो वृंदावन में रहते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने ऑर्डर दिया कि आप जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के विरोध में जो भी ऐसे अप्रचार हो रहा है, या गौड़ीय वैष्णविज्म के नाम पे जो भी गलत एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जैसे ये सब विनोद प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि इस प्रकार से नॉन बोनाफाइड संप्रदाय ये सब आ गए थे, सहजियास एंड अदर नॉन बोनाफाइड पीपल जो गौड़ीय सिद्धांत के या गौड़ीय वैष्णव प्रिंसिपल्स का पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के गलत प्रैक्टिसेस अपना रहे थे। सो इन सब चीज़ों का खंडन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि इनको आप भी बुक्स लिखो करके। सो ऑफ कोर्स ऑलरेडी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो लिख ही रहे थे। सो सम सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जो इनके लिटरेचर के थ्रू हमको मिलते हैं। सो जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास लिखा है, हरि भक्ति विलास का ही समरी स्टडी है क्या, नेक्टर ऑफ डिवोशन, राइट प्रभु जी, आई एम राइट ना? हरि भक्ति विलास समरी स्टडी इज नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, नहीं सॉरी, नॉट दैट। हरि भक्ति विलास इज अ सेपरेट बुक रिटन बाय सनातन गोस्वामी। नेक्टर ऑफ डिवोशन भी लिखा हुआ है रूप गोस्वामी का, तो बोथ आर डिफरेंट बुक्स। हरि भक्ति विलास इज मोर अबाउट द ऑफ कोर्स डीटी वर्शिप है ही, एंड हमारे जो भी वैष्णव गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में हम जो भी संस्कार एंड रिचुअल्स फॉलो करते हैं वो सब हरि भक्ति विलास में दिया हुआ है। सो ये जब सनातन गोस्वामी लिख रहे थे तो इसके कंपाइलेशन में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी भी सनातन गोस्वामी को हेल्प कर रहे थे। उसी प्रकार से इन्होंने जो बुक लिखी है वो एक स्पेशल इनकी एक बुक का नाम है सत्क्रिया सार दीपिका, सत्क्रिया सार दीपिका। तो इसमें भी हमारे गौड़ीय वैष्णविज्म में क्या क्या रिचुअल्स वगैरह उस पर इन्होंने आउटलाइन किया हुआ है, सत्क्रिया सार दीपिका। और फिर जीव गोस्वामी ने बहुत ही फेमस ग्रंथ हमको दिए हैं जिनको बोलते हैं षड संदर्भस। तो इसका जो फॉरवर्ड है इन्होंने लिखा है फॉर षड संदर्भ। जैसे कोई भी बुक होता है उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, फॉरवर्ड होता है ना, भूमिका, जो स्पष्ट करता है कि ये बुक क्यों और क्या किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है। तो इसके लिए इन्होंने आउटलाइन या एक फॉरवर्ड लिखा। सो षड संदर्भात एक्चुअली देयर आर 6 बुक्स एक्चुअली, जिनको अगर पढ़ लिया तो बोला था कि वी कैन इस्टेब्लिश गौड़ीय सिद्धांत एज बोनाफाइड सिद्धांत, और बाकी सारे
नॉन बोनाफाइड सिद्धांत कोई भी हो, हम किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। मतलब इट इज़ सो पावरफुल। षड संदर्भास में इतना कुछ दिया हुआ है। 6 बुक्स है देयर आर एक्चुअली। तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भक्ति संदर्भ, ऐसे करके जरा 6 बुक्स। और इनमें पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को जीव गोस्वामी ने प्रेजेंट किया है। इतना पावरफुली प्रेजेंट किया है कि हम किसी भी नॉन बोनाफाइड फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मायावाद हो, दिस हो, दैट हो, वॉट एवर। षड संदर्भ बस, तो इसके लिए उन्होंने आउटलाइन दिया था। एंड देन इनके डिसाइपल्स में से गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके एक शिष्य थे गोपीनाथ पुजारी, जो कि लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने राधा रमन की सेवा की, रिमेनिंग एज ए ब्रह्मचारी। गोपीनाथ पुजारी, गोपीनाथ। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दिया है श्रीनिवास आचार्य को। सो वी कैन सी द कनेक्शन हाउ देयर इज गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके दीक्षा डिसाइबल है श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य के डिसाइबल है रामचंद्र कविराज, जिनका डिसअपीयरेंस आज है। सो इनके ग्रैंड डिसाइबल है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के ग्रैंड डिसाइबल है रामचंद्र कविराज। एंड दोनों का फॉर्चुनेटली अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस एक ही दिन आ रहा है। सो एंड देयर आर मेनी अदर, और भी स्टॉल बहुत बड़े बड़े वैष्णवों का इन्होंने दीक्षा दिया है। बट 2 मेन आर दिस, गोपीनाथ पुजारी एंड श्रीनिवास आचार्य, इनके मेन डिसाइपल्स में गिने जाते हैं। सो जो महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो दिया था अपना बेल्ट और कॉपिन, वो अभी भी राधा रमन मंदिर में रखा हुआ है, ऐसा बोला जाता है। अभी आई डोंट नो कहाँ पर रखा है, मैंने कभी देखा नहीं है। व्हेन वी गो देयर वी जस्ट गो फॉर दर्शन ऑफ राधा रमन, बट इट इज़ मेंशन्ड कि वो बेल्ट अभी भी उस मंदिर में प्रिजर्व किया है, महाप्रभु का बेल्ट और कॉपिन, जो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को स्पेशली दिया था। एंड गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो राधा कृष्ण लीला में गुण मंजरी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी एज पर गौर गणोदेश दीपिका इन राधा कृष्ण लीला शी इज गुण मंजरी। सो ऑल आवर गोस्वामीज आर मंजरीज एंड they are the assistants of the gopis. Manjaris are considered to be the assistants of the gopis, especially the जो अष्टसखी है। So Gopal Bhatta Goswami is Guna Manjari, so very exalted position. And regarding Goswamis, तो इनका तो पूरा ग्लोरिफिकेशन किया ही हुआ है श्रीनिवास आचार्य ने षड गोस्वामी अष्टकम में। क्या उनका मूड और क्या उनका एक्टिविटीज़ होते थे, किस प्रकार से राधा कृष्ण के चिंतन में उनके लीलास को याद करते हुए they were always absorbed in ecstasy, and they were also preaching, the Goswamis, all the Goswamis. So anyways, Hare Krishna. So that's all from my side for today. आप में से किसी को कुछ कमेंट्स या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we'll stop here. ओके, श्रील श्रीनिवास आचार्य, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, श्री रामचंद्र कविराज की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।